આજે છોટાઉદેપુર લોકસભાની કાર્યકર્તાઓનું સંમેલન હતું. માનનીય ગુજરાત પ્રદેશના સહપ્રભારી દુર્ગેશ પાઠકજી અને ગુલાબસિંહ યાદવજીની અધ્યક્ષતામાં. ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં આવનારી તાલુકા જિલ્લા પંચાયતની જે ચૂંટણીઓ આવી રહી છે સ્થાનિક સ્વરાજની, એમાં આ લોકસભાની તમામ વિધાનસભાઓની તાલુકા પંચાયતોમાં જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો પર મજબૂતીથી લડી શકાય, સારા ઉમેદવારને ઉતારી શકાય અને આવનારા ભવિષ્યમાં લોકોના જે પણ પ્રશ્નોના નિરાકરણો લાવવાના છે એ સમસ્યાનો નિરાકરણો લાવી શકે અને પાર્ટી મજબૂત બની શકે એ પ્રકારની વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ છે. અને અમને પૂરી ભરોસો અને વિશ્વાસ છે કે આવનારા દિવસોમાં છોટાઉદેપુર સહિતના તમામ વિસ્તારોમાં આમ આદમી પાર્ટી વધુ મજબૂતથી આગળ વધશે. ખાસ કરીને સૌથી પહેલી હવે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આવી છે, એમાં આમ આદમી પાર્ટીનું કેવું આયોજન છે અને વિધાનસભાને લઈને પણ તૈયારી. તમે જોયું હશે 2024માં કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન હતું. હાલની વિસાવદરની ચૂંટણી દરમિયાન એ ગઠબંધન ગુજરાતમાં જ્યારે તૂટી રહ્યું છે, ખુદ શક્તિસિંહ ગોહિલે કીધું કે હવે અમારું ગઠબંધન નથી, ત્યારે ચોક્કસપણે તમામ બેઠકો પર આમ આદમી પાર્ટી સ્વતંત્ર લડવાની છે. અને આ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી હોય કે આવનારી વિધાનસભા હોય, આમ આદમી પાર્ટીની પૂરી તૈયારી છે. આવનારા દિવસોમાં કદાચ કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન થાય તો ગઠબંધનમાં લડીશું, ગઠબંધન નહીં થશે તો પૂરી બેઠકો પર આમ આદમી પાર્ટી લડશે. હમણાં વિસાવદરની જે બેઠક છે એને લઈને બહુ ચર્ચાઓ, તમે પણ ત્યાં જઈને તમે કેવો માહોલ તમને? વિસાવદર એ વિધાનસભા એવી છે, તમે જોઈ શકો છો ઘણા સમયથી કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સામદામ દંડ ભેદની નીતિ અપનાવે છે પણ જીતી શકતી નથી. ત્યાં આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૂંટાયેલા લોકોએ આમ આદમી પાર્ટી પર ભરોસો કર્યો, પણ એમણે વિશ્વાસઘાત કરીને ફરી ભાજપમાં જતા રહ્યા પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે. ત્યારે જનતા સ્પષ્ટ અને સારી રીતે જાણે છે કે ત્યાં ગોપાલભાઈ ખેડૂત પુત્ર છે, ગુજરાતના લીડર છે, યુવાઓના માર્ગદર્શક છે અને ગોપાલભાઈ ઘણા સમયથી ત્યાં કેમ્પેન કરે છે. અમે પણ 2-3 દિવસ ત્યાં કાર્યક્રમમાં હતા. ખૂબ સારો માહોલ છે, ભાજપ વિરોધી માહોલ છે, જેનો ફાયદો ગોપાલભાઈને થવાનો છે અને વિસાવદરમાં ગોપાલભાઈ આ વખતે પેટા ચૂંટણી જીતે છે. અંદાજે આમ આદમી પાર્ટીએ કેટલી રાજકીય સરસાઈ છે? અંદાજે લીડની હું વાત નહીં કરું, પણ આમ આદમી પાર્ટી ત્યાં જીતે છે. બીજું ચેતરભાઈ કે હાલમાં જે છેલ્લા કેટલાય સમયથી એવી વાતો ચાલતી હતી કે કેટલાક ધારાસભ્યો આમ આદમી પાર્ટીના બીજેપીમાં જવા દે, એ વાતો જે થતી એ લઈને શું કહેવું? હા, અઠવાડિયા 10 દિવસ પહેલા મીડિયાના માધ્યમથી મને પણ જાણવા મળ્યું કે આમ આદમી પાર્ટીના 3 ધારાસભ્યો ઉમેશ મકવાણા, હેમંત ખવા અને સુધીર વાઘાણી ભાજપમાં જોડાવાના છે. એ અફવાઓ હતી. અમે બધા સાથે છે અને તમે જોયું હશે વિધાનસભામાં એક વિપક્ષની ભૂમિકામાં અમે ગુજરાતની જનતાના પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે, સરકારને ઘેર્યા છે અને જ્યાં પણ જરૂર લાગી છે અમે સડકથી લઈને સદન સુધી લડીએ છીએ. લોકસભા દરમિયાન પણ ઘણી ઓફરો હતી. હાલના તબક્કે વિસાવદરની ચૂંટણીને લઈને પણ ઘણી વાતો થતી હોય છે, પણ અમે આમ આદમી પાર્ટીમાં છે. આમ આદમી પાર્ટીમાં રહીને જ આવનારા દિવસોમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ લડાવવાના છે અને 2027માં પણ અમે ખૂબ મજબૂતાઈથી લડવાના છે. એ અફવા તમને લાગે છે કોને ફેલાઈ હશે કે જે આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય? એ અફવામાં હું વધારે અંદર નથી જઈ શકતો, પરંતુ મને લાગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેટલાક લોકો હશે જેમણે આ અફવા ઊભી કરી હશે, હવા ઊભી કરી હશે અને મીડિયામાં એ વાતો પહોંચાડી હશે એવું મને લાગે છે. ત્યારબાદ મેં તમામ ધારાસભ્ય સાથે વાત કરી. મેં દળનો નેતા છું એટલે તમામ ધારાસભ્ય સ્પષ્ટપણે કીધું કે કોઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હાલના તબક્કે જોડાવાના નથી, ક્યારે જોડાવાના નથી. आप पहली बार छोटाउदेपुर जिले में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग किया है। आने वाला चुनाव तालुका पंचायत जिला पंचायत कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ। मैं 2015, 16, 17 में पहले भी प्रभारी रह चुका हूँ। 2020, 21, 22 में भी यहाँ पे इंचार्ज रह चुका हूँ और अभी फिर से पार्टी ने जिम्मेवारी यहाँ पर दी है। जहाँ तक आपका जो सवाल है कि कांग्रेस से गठबंधन होना और ना होना, तो ये कांग्रेस आप देखेंगे कि पिछले 5 आपके बाईपोल हुए तो उन्होंने उसके अंदर हमने उनको पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद एक और इलेक्शन हुआ, उसके अंदर भी उनको हमने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन विसावदर और कड़ी के चुनाव में अभी जैसे शक्तिसिंह गोहिल ने जो बयान दिया, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सभी पार्टियों को लड़ने का अपना अधिकार है, लेकिन खुद स्वयं राहुल गांधी जी का ये कहना अपने आप में आश्चर्यजनक है कि गुजरात के अंदर हमारी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा की जेब में, तो खुद उनके पार्टी के शीर्ष नेता अगर कहते हैं, और ये बात जग जाहिर है पूरे गुजरात के अंदर पिछले 25-30 साल में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं हरा रहे कि उनके शीर्ष नेता और बड़े लीडर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं।
कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट उनके चलते हैं और सरकार के अंदर उनका किसी ना किसी रूप से उनका सीधा लेन देन है। इसलिए कांग्रेस के लीडर्स जो बड़े हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ सके। विसावदर के अंदर गोपाल इटालिया बहुत ही मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि विसावदर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और हमारे यहाँ के हीरो चेतर भाई वसावा जो कि बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आ रहे हैं, जब इन जैसे युवा लड़के गुजरात विधानसभा में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला 2027 के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के अंदर गुजरात के 6 करोड़ लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आपने भी प्रवचन में बताया गुजरात में ड्रग्स बिकता है, ड्रग्स आता है, दारू आता है। ये सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए, अपने कैमरे लेकर आप युवाओं से पूछिए यहाँ का कौन सा कॉलेज है, यहाँ का कौन सी यूनिवर्सिटी जहाँ पर ड्रग्स नहीं बिकती। हर तीसरे दिन गुजरात के किसी भी प्रमुख अखबार की फ्रंट लाइन पर छपी होती है, आज 400 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई, आज 500 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई। गुजरात के युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। आज गुजरात में करीबन 25,000 करोड़ रुपए ना सालाना शराब का माफिया यहाँ पर चलता है, जो गुजरात के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। तो गुजरात एक नशे का अड्डा भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो गुजरात के लोगों को और गुजरात के युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि इस सरकार से किस तरह से आज़ादी उनको लेनी है। तो एक विकल्प के तौर पर उनके सामने आम आदमी पार्टी खड़ी। आप ऐसा सोच रहे हो कि गुजरात में ही ड्रग्स बिकता है? मैं मानता हूँ कि गुजरात अकेला राज्य नहीं, कई सारे राज्यों में ये काम होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ, मैं बिल्कुल स्वीकारता हूँ कि बहुत सारे राज्यों में ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, लेकिन गुजरात प्रदेश जैसे राज्य में फैलना, जिसको गुजरात मॉडल बताकर पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनाई, कई सारे राज्यों में सरकार बनाई, तो ये गुजरात मॉडल भी दिखाना चाहिए कि यहाँ पे ड्रग्स का खुलेआम व्यापार चल रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है? माफी चाहता हूँ, जो ड्रग्स बिक रहा है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? सरकार करिए, पुलिस प्रशासन इनका, सारे जितने भी जहाँ से ये ड्रग्स आ रही है, सारा सिस्टम इनके हाथ में। अगर ये चाहे तो रुक सकती है, लेकिन क्यों नहीं, ये सोचने का विषय है। और इसको लेकर हमारे चेतर भाई वसावा ने विधानसभा के अंदर या फिर यहाँ पे लोकल जब सभाएं होती है जनता के बीच में, खुलेआम बोला इन्होंने। गोपाल भाई इटालिया खुलेआम बोल रहे हैं। यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष यशुदान गढ़वी ने कितनी बार ये सवाल उठाए, लेकिन सरकार यहाँ आखिर नहीं खुल रही। ड्रग्स बिकने का जो रोक लगाई गई है उसके लिए सरकार को क्या करना? निश्चित तौर पर सरकार चाहे तो बिल्कुल रुक सकते हैं। प्रशासन सरकार के हाथ में है। जितने भी आपके जहाँ पे भी जितने भी आपका चाहे कांडला हो, कहीं पे भी है, जो जितने पोर्ट है उनके ऊपर से बात ये सारी की सारी सारे देश को पता है, हर अखबार में रोजाना छपती। तो ऐसा नहीं है कि नहीं रुक सकती, सरकार चाहे तो रुक सकती है। बॉर्डर क्रॉस, अगर आज शराब के ट्रक, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर हो, मध्य प्रदेश बॉर्डर हो, वहाँ पे कौन खड़ा है? गुजरात पुलिस खड़ी है। वो खेतों में से तो आती नहीं, आती तो रोड से ही है ना। तो चाहे तो गुजरात पुलिस इसको रोक सकती है। गुजरात की भारतीय जनता पार्टी जिस दिन अगर चाहे तो इस शराब माफिया को, ड्रग्स माफिया को रोक सकती है। दूसरी बात है कि अब क्या करना चाहिए भारत सरकार? देखिए, सबसे पहली बात तो पूरे देश की सिंपैथी और पूरा देश खड़ा है आज, और हर हिंदुस्तानी के दिल में दर्द है कि जिस तरह से 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई, पूरा देश सदमे में है। और पूरा देश आज केंद्र सरकार के साथ खड़ा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ की जानी चाहिए। पूरा देश एक उम्मीद की नज़रों से देखता है। और जो चूक हुई है वादी के अंदर, जो चूक हुई है, जहाँ पर हजारों लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पर छुट्टियां मनाने गए थे, वहाँ पर एक भी कोई भी आर्मी का जवान, कश्मीर पुलिस का जवान वहाँ पर नहीं था। तो इसको चूक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अगर वहाँ पर वो जवान होते तो शायद ये हादसा टल सकता था। और जिसके इनपुट्स इनके पास में थे, सरकार के पास में थे, उसके बावजूद भी इतना बड़ा हमला हुआ। तो सरकार को इससे सीख लेने की जरूरत है और ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी संगठन के कभी भी इस तरह की सोचने की हिम्मत भी ना पड़े। किसको दोषी मानते हो? कौन सी सरकार? केंद्र सरकार को नहीं, मानते हो? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार दोषी है इसके अंदर। सारी जितनी भी एजेंसीज हैं वो सारी केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। आज हमने छोटा उदयपुर की 7 विधानसभाओं के मुख्य जो कार्यकर्ता थे, हमारे सभी विधानसभाओं के प्रमुख, सह प्रमुख, जिला अध्यक्ष, तमाम हमारे साथियों के साथ आज बैठक की है। उसमें चेतर भाई वसावा, यहाँ पे बहन है हमारी, वो सब लोग हम थे। और हमने आगे इस संगठन को किस तरह से आगे लेके जाना है, और स्थानिक चुनाव जो कि 7-8 महीने बाद आने वाले हैं 9,500 सीटों पर, उस पर आम आदमी पार्टी
किस किस उम्मीदवार को उतारने जा रही है उसके बारे में समीक्षा बैठक हुई। और हम 7 मई से और 5 जून तक गुजरात की 182 विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं। और 1 तारीख को अहमदाबाद में स्थापना दिवस पर भी हम एक सभा करने जा रहे हैं। और हम एक संकल्प लेंगे कि हमारे गुजरात के तमाम जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं वो एक दिन का उपवास करेंगे। और हम संकल्प लेंगे कि 2-2.5 साल बाद जो गुजरात विधानसभा के चुनाव है उस चुनाव को जीतने के लिए हम संकल्प लेंगे तमाम कार्यकर्ता। तो उस विषय में आज यहाँ विस्तार से बैठक की। थैंक यू। खासतौर पे आने वाले जो चुनाव है तो इस तरह जैसे कि कांग्रेस की तैयारी करी और आम आदमी पार्टी की तैयारी, इस बार गठबंधन रहेगा या अलग? मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले ही बताया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस, आपको मालूम है कि पिछले 25-30 साल से कांग्रेस जो है वो गुजरात कांग्रेस इकाई जो है भारतीय जनता पार्टी की जेब में बैठती है। भारतीय जनता पार्टी जिसको कहती है कांग्रेस उसको टिकट देती है। तो कांग्रेस के ऊपर गुजरात के 6 करोड़ लोगों का विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह खुद में चल रहा है। तो एक उम्मीद जो बची है वो अकेले आम आदमी पार्टी बची है, जिस पर लोगों को उम्मीद है कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। विसावदर में क्या होगा? निश्चित तौर पर विसावदर में गोपाल भाई इटालिया कई महीनों से लगातार कैंपेन कर रहे हैं। और जो मैंने वहाँ पे जाके समझा, मैं खुद विसावदर गया था, 6 तारीख के बाद भी जाऊंगा। विसावदर के लोग गोपाल इटालिया को बहुत प्यार कर रहे हैं। और हमें बहुत उम्मीद है कि विसावदर के जो खेडूत हैं, युवा है, बहनें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और आप देखेंगे पूर्व में भी कि पिछले 20-25-30 साल से भाजपा वहाँ पे नहीं जीत पाई। थैंक यू।